Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Database Management System. In this video lecture, we will learn about transaction processing. So here, the content we will discuss is, first of all, we will discuss what is transaction, and then we will discuss asset properties of transaction, and then we will learn about the states of transaction, right? So here we go to start our topic. We will learn about what is transaction. So what is transaction? Transaction is a group of tasks or operations, right, that forms a single logical unit of work are called transaction, right? So several small operations जो कि आपका एक single task perform करे उन्हें हम बोलते हैं transactions. For example, if we transfer an amount from A to B, that is a transaction. A account से B account में हम कुछ amount transfer कर रहे हैं, that is a transaction. बट इट कंटेन्स हमें वर्क एक ही दिख रहा है कि हमारा मनी डिडक्ट हो रहा है ए से एंड बी में जाकर ऐड हो रहा है, राइट? वर्क, इट इज अ सिंगल वर्क, बट इट विल बी परफॉर्म्ड इन सेवरल small operations. So different operations that are that compose a single logical unit of work is called transaction. I hope that is clear. So transaction क्या है? Different small operations, different operations जो कि आपका एक सिंगल वर्क परफॉर्म करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन. Now consider this example, students. Suppose an employee of bank transfer, employee transfers an amount from rupees 1800 from A's account to B account. So this transaction contains several low-level tasks, and the tasks are as follows. We will discuss what are the various tasks or operations that are performed in transferring this amount. So first of all, you will read, you will open the A's account, right? So open account A, this is one operation that will be performed. Then old balance will be read. So old balance में आपका A का बैलेंस आ जाएगा, ये आपने रीड किया. एंड न्यू बैलेंस क्या सेट कर देंगे आप? ओल्ड बैलेंस में से 1800 माइनस डिडक्ट कर देंगे बिकॉज वी आर ट्रांसफरिंग 1800. एंड देन यू विल सेट A का बैलेंस इक्वल टू न्यू बैलेंस, राइट? A का जो बैलेंस है, डॉट बैलेंस विल बी न्यू बैलेंस नाउ, एंड यू विल देन क्लोज द अकाउंट. सो यहाँ पर अभी वर्क सिर्फ एक परफॉर्म हुआ है. यू हैव डिडक्टेड द अमाउंट 1800 फ्रॉम एज अकाउंट, बट these are performed in the several operations, right? These are several small operations that perform the single task. So that is a transaction. Now if we talk about B's account, so B के account में क्या क्या operations perform होंगे? Because we are transferring a 1800 from A's account to B's account. So B account में क्या क्या perform होंगे? First of all, you will open account B, then you will read the old balance. Old balance एक variable में आप B का balance read करेंगे. Then you will set new balance equal to old balance plus 1800. It means जो old balance में जो amount है उसमें आप 1800 add कर देंगे because that is transferred from A to B. So you will add these 1800 into B's account. And then you will set B balance equal to new balance, and then you will close the account. So this is first transaction, you can say it a T1 transaction, and this is another transaction that is T2, right? So ये दो transactions हमारे complete हुए. बट ये ट्रांजेक्शन ने क्यों बोला? क्योंकि वर्क एक है, यहाँ से अमाउंट डिडक्ट होना, एंड इट इज कंपोज ऑफ सेवरल ऑपरेशंस. एंड इन द सिमिलर वे दिस इज जस्ट वन वर्क, दिस इज जस्ट वन वर्क, और वी कैन से जस्ट वन ट्रांजेक्शन T2, जिसमें कि आप 1800 ऐड कर रहे हैं, राइट? 1800 रिसीव हो रहा है इस अकाउंट में, बट इट इज कंपोज ऑफ सेवरल स्मॉल ऑपरेशंस. सो आई होप ट्रांजेक्शन आपको क्लियर होगा. तो स्टूडेंट, ट्रांजेक्शन पर हम दो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. इफ यू टॉक अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ ट्रांजेक्शन, देयर आर टू ऑपरेशंस. फर्स्ट इज रीड एक्स एंड सेकंड इज राइट एक्स. सो रीड एक्स ऑपरेशन हम क्यों परफॉर्म करते हैं? इट इज यूज्ड टू रीड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम बफर ऑफ द डेटाबेस एंड स्टोर इन द बफर इन मेन मेमोरी, राइट? रीड एक्स ऑपरेशन क्या करता है? रीड एक्स आपके डेटाबेस, लेट्स से दिस इज अ डेटाबेस, एंड डेटाबेस से आपका डेटा रीड करता है. रीड एक्स यानी कि लेट्स से कोई भी वेरिएबल है, आप एक्स की वैल्यू रीड करते हो डेटाबेस से. डेटाबेस इज रीड, एंड देन यू स्टोर दिस वैल्यू इन अ बफर इन मेन मेमोरी, राइट? क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें जो डेटा चाहिए होता है वो हम मेन मेमोरी में स्टोर कराते हैं. सो कंसीडर दिस इज मेन मेमोरी एंड यू विल प्लेस दिस एक्स इनटू दिस मेन मेमोरी. आई होप दैट इज क्लियर. सो रीड एक्स ऑपरेशन क्या करता है? एक्स की वैल्यू रीड करेगा डेटाबेस में और उसे मेन मेमोरी में किसी बफर में प्लेस कर देता है. This is first operation of the transaction. Second operation is, we can say, write x. Write x क्या करता है? Write x operation, let's say x में आपने कोई भी changes किए, and then उन changes को वापस से आप database
बफर से वापस डेटाबेस में पुट कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं राइट एक्स ऑपरेशन। तो स्टूडेंट एक सिंपल सी बात है, क्योंकि जो भी हम वर्क वर्क परफॉर्म करते हैं, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो सीपीयू के पास जाते हैं, राइट। अब सीपीयू क्या करता है, सीपीयू डज नॉट कम्युनिकेट विद द डेटाबेस डायरेक्टली, राइट। सीपीयू आपका डेटाबेस से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता है, तो ये क्या करता है, एक आपको इंटरमीडिएट स्टेट चाहिए, राइट। इंटरमीडिएट आपको कम्युनिकेशन के लिए वे चाहिए। So we use the main memory, right? Or we can say this is RAM. अब रैम में आपके क्या होते हैं, रैम में आपके बफर्स, बफर्स में आप डेटा स्टोर करा सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर रीडेक्स का क्या काम है, इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं समझाऊँ आपको, सो रीडेक्स क्या करेगा, रीडेक्स आपका सीपीयू के पास लेट से रीडेक्स ऑपरेशन किया, राइट। रीडेक्स ऑपरेशन ने क्या किया, रीडेक्स ऑपरेशन आपके डेटाबेस से डेटा स्टोर करेगा। सो व्हाट इट विल डू, डेटाबेस से एक्स रीड करेगा एंड इट विल स्टोर इन दिस मेमोरी, राइट, रैम। रैम या कैश मेमोरी या कुछ भी होती है हमारे पास, तो हम डेटा रैम में स्टोर करते हैं। देन अब इसके पास अगर राइट एक्स ऑपरेशन आया, सो व्हाट इट विल डू, बफर से जो एक्स की वैल्यू है, राइट एक्स ऑपरेशन वापस उसे डेटाबेस में स्टोर कराएगा, राइट। इज दैट क्लियर, रीड एक्स एंड राइट एक्स ऑपरेशन? So now we will see what are various properties of database. But before learning the properties of transaction, we consider this a small example. This is a debit transaction. First of all, read x operation is performed. It will read the value of x. Then x से आपने 500 decrement किया and then you are writing right x, right? So this is a small transaction जो कि x की value को 500 से reduce कर रहा है, and it is composed of three operations, right? Read x and then you will perform operation on x value and then you will write x, right? However, if above transaction failed due to failure of hardware, power, etc. So if there is any failure in these operations, to solve this problem, we have two important operations, right? First operation is commit and second is rollback, right? कमिट क्या होता है स्टूडेंट्स, कमिट होता है, लेट्स से आपका इस स्टेप पर आपका फेलियर हुआ, राइट। अगर आपका इस स्टेप पर फेलियर अगर हुआ, देन ये क्या करेगा, जितना भी आपका वर्क डन कंप्लीट हो चुका है उसे आपका ऑटोमेटिकली सेव कर देगा, राइट, परमानेंटली सेव करेगा। सो इट इज यूज टू सेव द वर्क डन परमानेंटली, जो भी आपका वर्क हुआ है उसे परमानेंटली स्टोर करता है कमिट ऑपरेशन। एंड रोल बैक ऑपरेशन क्यों यूज किया जाता है, इट इज यूज टू अनडू द वर्क डन। जो भी वर्क, जितना भी वर्क आपका कंप्लीट हो गया है उसको रोल बैक कर देना, इट मींस उसको अनडू कर देना, एंड देन यू विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हमें रोल बैक यहाँ पर करना हो, सो यहाँ पर फेलियर हो गया, तो जितना भी चेंजेस हुए हैं ये इसको चेंजेस को कंसीडर नहीं करेगा, इट विल रोल बैक मतलब स्टार्टिंग फर्स्ट ऑपरेशन पे चला जाएगा एंड देन इट विल रीस्टार्ट अगेन, ये दोबारा से यहाँ से ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा। सो देर आर टू इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, कमिट एंड रोल बैक। कमिट आपका जितना भी वर्क हुआ है उसको परमानेंटली स्टोर करता है, एंड रोल बैक आपका जितना भी वर्क हुआ है उसको अनडू करने का काम करता है। आई होप दैट विल बी क्लियर। एंड नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज दैट आर एसेट प्रॉपर्टी। सो ट्रांजैक्शन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, चार मेन प्रॉपर्टी हैं, जिन्हें हम स्टूडेंट्स बोलते हैं एसेट प्रॉपर्टी ऑल्सो, राइट। एसेट प्रॉपर्टी। सो ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, सी स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी, आई स्टैंड्स फॉर आइसोलेशन एंड डी इज फॉर ड्यूरेबिलिटी, राइट। सो एटॉमिसिटी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एटॉमिसिटी। सो एटॉमिसिटी प्रॉब्लम क्या स्टेट प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है आइदर ऑल और नन, आइदर ऑल और नन। सो ऐसे प्रॉपर्टी कहती है आइदर ऑल और नन। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि या तो आपके सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो या फिर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म ना हो, राइट। दिस इज एटोमिसिटी। सो इट स्टेट्स दैट all operations of the transaction take place at once, if not the transaction is aborted। अगर सारे ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं तो ट्रांजेक्शन को abort कर दिया जाए। there is no midway। नो मिडवे का मतलब है, इट मींस ट्रांजेक्शन कैन नॉट अकर पार्शियली, ट्रांजेक्शन पार्शियली नहीं हो सकता, राइट। आइदर ऑल आर सक्सेसफुल और नन, या तो सारे सक्सेसफुली कंप्लीट हो ऑपरेशंस या फिर कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म ना हो। सो दिस इज एटोमिसिटी। नाउ कंसीडर an example. Let's say this is transaction, right? This is a transaction, and what it is doing, it is first of all read a, it is performing read a operation on variable a, right? And then let's say a is decrementing by 50, a is, it is decrementing a equal to a minus 50,
and then it will write A, right? This is a transaction, and then next step it will write the value of A. So write A operation will be performed, and then consider now it will read B, and it will it will read C, and so on. These operations are to be performed, right? And after doing some operation it have to commit, and before commit let's say at any step यहाँ पर इसे commit होना था, right? अब हमने क्या assume किया कि कमिट होने से पहले किसी पर्टिकुलर प्लेस पर फेलियर अकर हुआ, राइट? लेट्स से इस स्टेप में फेलियर हुआ, तो एटोमिसिटी प्रॉब्लम कहती है, एटोमिसिटी स्टेटमेंट या प्रॉपर्टी कहती है कि यहाँ पर अगर फेलियर हुआ है, सो यू विल रोल बैक द ट्रांजेक्शन, यू विल गो टू द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड यू विल रिपीट द अगेन. सो इट मीन्स या तो सारे ही ट्रांजेक्शन होंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बीच में यहाँ पर इतना ही सेव चेंजेस करके छोड़ देंगे. सो एटोमिसिटी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कभी भी फेलियर होता है तो आप रोल बैक करके या तो दोबारा से स्टार्ट कीजिए, या फिर ये जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं ये कंसीडर नहीं किए जाएंगे कि ये परफॉर्म हुए हैं. बिफोर कमिट, कमिट क्या करता है? कमिट आपके चेंजेस को परमानेंटली सेव करता है. सो अगर कमिट होने से पहले आपके पास फेलियर होता है, सो इन इन दैट केस यू विल रोल बैक द ट्रांजेक्शन, राइट? एंड यू विल स्टार्ट अगेन, या तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे या तो इसे पूरा कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज यू कैन नॉट लीव इट इन द मिडल, राइट? This is atomicity property. So it says either all of the operations are successful or none, right? I hope that is clear. Now we will discuss next property, that is consistency. Consistency property says that integrity constraints are maintained so that database is consistent before and after the transaction. तो स्टूडेंट ये सारी ही प्रॉपर्टीज हमारी रियल टाइम में हम एज अ कॉन्सेप्ट में अप्लाई करते हैं. ये प्रॉपर्टी दैट आर नॉट, दीज आर द प्रॉपर्टीज दैट आर नॉट विजिबल नहीं है, बट इनका कॉन्सेप्ट हम अपने डेटाबेस में अप्लाई करते हैं. सो डेटाबेस हमारा क्या है? डेटाबेस अगर एग्जिस्ट करता है सो दैट शुड बी कंसिस्टेंट. दैट शुड बी कंसिस्टेंट का मतलब है कि बिफोर द ऑपरेशन परफॉर्म्स ऑन डेटाबेस, जितना भी ऑपरेशन आप डेटाबेस में कर रहे हैं, तो before transaction start and after the transaction, right? Let's say after the transaction this database should be consistent, right? ये consistent आपका होना चाहिए. So consistency property हमारी कहती है कि before transaction start and after that transaction completed, right, database should be consistent. अब consistent का meaning क्या है? So let us consider this example. Let's say मेरे पास एक A account है, right, and एक B account है, राइट? अब ए में ऑलरेडी जो बैलेंस है वो 600 है, एंड यहाँ पर जो बैलेंस है वो 300 है बी के अकाउंट में, राइट? सो बिफोर द ट्रांजेक्शन स्टार्टेड, अब मुझे करना क्या है? यहाँ से ए से बी में मुझे 100 रुपीज ट्रांसफर करने हैं, राइट? आई विल ट्रांसफर 100 रुपीज फ्रॉम ए टू बी. इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर अगर बिफोर द ट्रांजेक्शन स्टार्ट वाली कंडीशन देखें, सो बिफोर ट्रांजेक्शन स्टार्ट, बिफोर ट्रांजेक्शन स्टार्ट, उस केस में सम ऑफ मनी क्या होगा? सम ऑफ मनी आपका है 600 प्लस 300, राइट? 600 प्लस 300 दैट इज 900, दैट इज योर 900. बट अगर मैं देखूँ यहाँ पर, अगर हमने अपना ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया एंड वी आई हैव डिटेक्टेड अमाउंट 100 रुपीज यहाँ से डिडक्ट हुए, तो यहाँ कितने रिमेनिंग बचेंगे? यहाँ रिमेनिंग आपके बचेंगे 500, राइट? क्योंकि आपने 100 रुपीज बी को ट्रांसफर कर दिया है, राइट? तो ये हो गया अमाउंट 500 एंड दिस विल बी इंक्रीमेंटेड एंड ये हो जाएगा 400. नाउ आफ्टर द ट्रांजेक्शन completed, right, now we will check the balance. After transaction completed, जब आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ उस केस में आपका जो अमाउंट है वो आपको कितना मिला? वो आपको मिला 500 प्लस 400, राइट?
this 500 and this 400 will be added in this case, so you will get 500 plus 400, so it is 900. So it is clear कि बिफोर ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने से पहले भी आपका जो सम था वो 900 था, डेटाबेस में टोटल वैल्यू कितनी थी 900, एंड आफ्टर ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद आपका वैल्यू कितनी है 500 प्लस 400 दैट इज 900. सो हम यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि दिस इज कंसिस्टेंसी, राइट, दिस इज कंसिस्टेंसी, ये आपकी कंसिस्टेंसी कहलाएगी. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स से आप एटीएम से विड्रॉ करने चाहते हैं अमाउंट, राइट. अब आपने एटीएम से लेट्स से आपके पास 20K है, राइट. अब आप 20K से एटीएम से विड्रॉ करते हैं दैट अमाउंट कि आप 10K विड्रॉ कर रहे हैं, राइट. आपने 10K डेबिट किया, तो 10K डेबिट करने के बाद आपके पास तुरंत मैसेज आ जाता है कि आपके पास ये अमाउंट रिड्यूस होके जो आपके बैंक में है ये अमाउंट रिड्यूस होके 10K हो गया. इज दैट क्लियर? ये आपके पास मैसेज आ जाता है. सो इन दैट केस आप 10K आपके अकाउंट में है, राइट. 10K आपके पास कैश पड़ा है. सो इट सम ऑफ इट विल बी आफ्टर द ट्रांजेक्शन एंड बिफोर द ट्रांजेक्शन आपके पास 20K थे, एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन भी आपके पास 10K आपके पास हार्ड कैश होगा और 10K आपके पास अकाउंट में होगा. सो इट विल बी 20K. So there is consistency, but consider the case when let's say कि आपके पास 10K अमाउंट यहाँ पर आ गया, बट आपके पास मैसेज 10K अमाउंट ये नहीं आया, आपने एटीएम से विड्रॉ किए, आपके पास कैश नहीं निकला. कभी कभी एटीएम मशीन में भी प्रॉब्लम हो जाती है. सो कैश नहीं आया, बट आपके पास यहाँ पर मैसेज आ गया कि आपके अकाउंट में 10K रिमेनिंग है, यानी कि डेबिट का मैसेज आ गया, बट यू डिड नॉट रिसीव द कैश. सो इन दैट केस अगर आप सम देखेंगे, सो सम विल नॉट बी इक्वल टू 20K बिकॉज आपके पास 10K ही अकाउंट में है और कैश तो आपके पास आया ही नहीं है. सो दिस स्टेट विल बी कॉल्ड इनकंसिस्टेंट स्टेट. आई होप दैट इज क्लियर. अब जो आपका रहेगा वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में रहेगा आपका ट्रांजेक्शन. आई होप दैट इज क्लियर. तो इस केस में बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. उस केस में बैंक ट्रांजेक्शन को रोल बैक करे या ट्रांजेक्शन डिस्कार्ड करे, तो जो भी करेगा वो रोल बैक करेगा ट्रांजेक्शन को. सो दैट इन दैट केस व्हेन यू डिड रिसीव द कैश एंड बट डेबिट का मैसेज आ जाता है, तो वो आपकी इनकंसिस्टेंट स्टेट होती है, राइट. आई होप सेकंड प्रॉपर्टी इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आइसोलेशन. आइसोलेशन इज कि आपका जो भी पैरेलल शेड्यूल्स है, यानी कि पैरेलल जो शेड्यूल्स है वो सीरियल शेड्यूल की तरह वर्क करे, राइट. प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट इट इज अ कॉन्सेप्ट आइसोलेशन प्रॉपर्टी का. सो आइसोलेशन प्रॉपर्टी कहती है कि जितने भी पैरेलल ट्रांजैक्शन आपके हो रहे हैं वो एक दूसरे को इंटरफेयर ना करे, यानी कि एक का इफेक्ट दूसरे पर इफेक्ट ना करे. इट मीन्स जो आपके ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो आपको इस तरह से लगने चाहिए कि दे आर एग्जीक्यूटिंग सेपरेटली, राइट. So it shows that the data which is used at a time of execution of a transaction cannot be used by the second transaction until the first one completed. जब तक आपका फर्स्ट का ट्रांजेक्शन, लेट्स से आपका एक ट्रांजेक्शन T1 है एंड ट्रांजेक्शन T2 है, ठीक. ट्रांजेक्शन T2 भी T1 आपका रीडे ऑपरेशन कर रहा है एंड राइटे कर रहा है, राइट. रीडे के साथ साथ ये राइटे भी कर रहा है, और ट्रांजेक्शन T2 ए को रीड कर रहा है. ट्रांजेक्शन T2 में क्या है आपका रीड ए. सो इट सेज दैट आइसोलेशन प्रॉपर्टी सेज दैट जो भी आपकी ए की वैल्यू है, जब तक ये राइट ए नहीं कर देता और ये कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक T2 एग्जीक्यूट नहीं होगा. सो दिस इज आइसोलेशन प्रॉपर्टी. रियल टाइम में हमारा आइसोलेशन हम इम्प्लाई नहीं कर सकते, बट इसके कॉन्सेप्ट को हम इम्प्लाई करते हैं, राइट. कॉन्सेप्ट ही इम्प्लीमेंट होता है आइसोलेशन में. सो हमने अभी देखा कि डेटा which is used at a time of execution of a transaction cannot be used by the second transaction until the first one is completed. So हम ये कहते हैं कि जो transaction है वो isolately execute होना चाहिए, right. It means हम इसे conclusion निकाल सकते हैं कि जो आपके parallel transaction है उनको हम एज अ सीरियल कंसीडर करके चलेंगे, राइट. उन्हें सीरियली कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, जब पैरेलल ट्रांजैक्शन होता है तो सीपीयू स्विच करता है, सीपीयू स्विचिंग परफॉर्म होती है. और सीपीयू स्विचिंग किस तरह से होती है, सीपीयू विल स्विच फ्रॉम ट्रांजैक्शन T1 टू T2 एंड देन इट विल स्विच फ्रॉम T2 टू T1 एंड देन इट विल स्विच फ्रॉम T1 टू T2. सो क्योंकि ये पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहा है तो सीपीयू स्विचिंग विल बी देयर.
सो हम कंसीडर करके चलेंगे इसे कि पहले T1 पूरा एग्जीक्यूट हो, मतलब हम एक सीक्वेंस दे देंगे, सीरियल शेड्यूल में इसे कन्वर्ट करेंगे। सीरियल शेड्यूल का मतलब है कि आइदर यू विल कंसीडर पहले T1 कंप्लीट हो रहा है तब T2 को हम T2 को सीपीयू एग्जीक्यूशन दें, या फिर पहले T2 कंप्लीट हो रहा है, पहले T2 को सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम मिले, देन उसके बाद T1 को एग्जीक्यूशन टाइम मिले। So I hope isolation property is clear to you. Now the fourth property is durability. Durability means changes should be permanent, right? If there is any change after the transaction, that should be made permanently, right? So means once a transaction has been committed, एक transaction अगर commit होता है, it will remain, वो उसी जो भी उसने state save किया है वो उसी state में रहेगा. So even in the events of errors, power loss, etc., right? अगर आपका power loss भी हो जाता है, let's say ड्यूरेबिलिटी को हम इस तरह से समझते हैं कि आपने एटीएम से कैश निकाला, राइट? आपके पास अब 10 के रिमेनिंग है आपके अकाउंट में, राइट? और आपके पास मैसेज आ गया कि 20 के से 10 के आपने डेबिट किया, तो आपके पास 10 के अमाउंट रिमेनिंग है आपके अकाउंट में. अब भले ही एटीएम मशीन खराब हो जाए या पावर फेल हो जाए या बैंक का सर्वर स्लो हो जाए, उस केस में दिस 10K विल बी रिमेन्ड इन योर अकाउंट, राइट? बैंक का सर्वर स्लो हो जाए या कोई भी एरर हो जाए, उसकी वजह से आपका ये जो अमाउंट है दैट विल नॉट बी चेंज. इट मीन्स ये परमानेंटली सेव हो गया है जब तक अनटिल अनलेस आप यहाँ पर दूसरा ट्रांजेक्शन परफॉर्म ना करें. सो दिस इज ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी. नाउ वी विल डिस्कस स्टेट्स ऑफ ट्रांजेक्शन. सो स्टूडेंट, ट्रांजैक्शन की बहुत सारी स्टेट्स होती हैं. तो जब भी ट्रांजैक्शन आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, ट्रांजैक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं मेमोरी में आपका सेव होगा. जैसे आप कभी भी प्रोग्राम लिखते हैं, किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो प्रोग्राम आपका मेमोरी में स्टोर होता है, तो उस टाइम वो इनएक्टिव स्टेट में होता है. बट जब आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो एक्टिव स्टेट में आ जाता है. So in the similar way, whenever transaction is not being executed, at that time it will be in inactive state. But whenever transaction starts, it comes into active state, right? So active state में क्या होता है? Transaction is being executed. Transaction उस time पे execute होना start होता है, right? एक्टिव के बाद आता है हमारा जब तक आपका ट्रांजेक्शन चल रहा है, राइट? सो एट दैट टाइम वो पार्शियली कमिटेड स्टेट में रहता है. फॉर एग्जांपल, कंसीडर अ ट्रांजेक्शन एंड लेट्स से इसमें एन ऑपरेशंस होने हैं, राइट? इस ट्रांजेक्शन में एन ऑपरेशंस होने हैं. अब इन एन ऑपरेशंस में से लेट्स से उसने एन माइनस वन कंप्लीट कर लिए, राइट? एन माइनस वन कंप्लीट कर लिए और आपका जो एनथ ऑपरेशन था, राइट, ये एनथ ऑपरेशन आपका जो बचा था वो कमिट होना बचा था, राइट? तो जब तक वो कमिट नहीं हो रहा, लेट्स से लास्ट ऑपरेशन आपका कमिट होना बचा था, तो जब तक आपका ट्रांजेक्शन कमिट नहीं हो रहा, तब तक ये जो एन माइनस वन स्टेट्स तक वो पार्शियली कमिटेड स्टेट में रहेगा, राइट? आई होप दैट इज क्लियर. पार्शियली कमिटेड स्टेट में आपका ट्रांजेक्शन होगा, एंड व्हेन दिस nth ऑपरेशन दैट इज कमिट, जब ये आपका कमिट हो जाता है तो आपका जो ट्रांजेक्शन है वो कमिटेड स्टेट में आ जाता है, एंड देन इट विल टर्मिनेटेड, राइट? इट विल गो टू टर्मिनेट स्टेट, राइट? सो अभी हमें कमिटेड स्टेट का बताती हूँ. कमिटेड स्टेट में जितने भी चेंजेस हुए हैं ट्रांजेक्शन में वो परमानेंटली स्टोर्ड होते हैं. कमिटेड स्टेट में परमानेंटली स्टोर किए जाते हैं ट्रांजेक्शन के सारे जो भी चेंजेस हुए हैं वो डेटाबेस में स्टोर होते हैं. एंड देन at last in the termination state it will release all the resources. let's say उसने CPU ऑक्यूपाई किया है, उसने कैश मेमोरी, उसने रैम ऑक्यूपाई की हुई है, तो जितने भी रिसोर्सेज आपके कंप्यूटर के वहां पर ट्रांजेक्शन ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं टर्मिनेट स्टेट में, वो सब रिलीज कर देता है. आई होप दैट इज क्लियर. एंड देयर में ऑल्सो बी द केस कि अगर आपका एग्जीक्यूशन के टाइम पर ही कोई फेलियर आ जाए, कोई एरर आ जाए, तो उस केस में ट्रांजेक्शन फेल्ड स्टेट में आ जाता है. एंड व्हेन एवर ट्रांजेक्शन इज फेल्ड, ऐसा भी हो सकता है पार्शियली कमिटेड स्टेट से भी फेल्ड स्टेट में आ सकता है और एक्टिव स्टेट से भी वो डायरेक्ट फेल्ड स्टेट में आ सकता है, राइट? So whenever it is in the failed state, then we have to abort the transaction. It means हमें transaction को abort करना पड़ता है, and abort के बाद आपका आ जाता है termination state में. termination state में again जो भी resources receive किए हुए हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास ट्रांजेक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, राइट? सो ऐसा नहीं है कि एक ट्रांजेक्शन एक जितने भी रिसोर्सेज लिए उन्हें लेके बैठा रहेगा, राइट? तो अगर ट्रांजेक्शन कुछ सिस्टम के रिसोर्सेज यूज कर रहा है तो वो उन्हें रिलीज भी करेगा, बिकॉज अदर ट्रांजेक्शन माइट ऑल्सो नीड दैम. सो उस केस में टर्मिनेट स्टेट में जाएगा और जो भी रिसोर्सेज उसने ऑक्यूपाइड किए हुए टर्मिनेट स्टेट में वो सारे रिसोर्सेज वो रिलीज कर देगा. सो दीज आर द वेरियस स्टेट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन. सो स्टूडेंट, ट्रांजेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा.
Thank you so much for watching this video. In the next video lecture, we will discuss about schedules.